nothing can ever break us. The future is now, I don't believe in later. I keep it pushing till I meet my maker. Real legends never die, they become greater. I put in work, look where I wound up. Found up at the top, built from the ground up. It's time to shine when we walking out. The world is mine, I'm the one they gon' be talking about. I can see it now, bright as the sun. I am the one, I just begun. Can't stop my run, till kingdom come. What's done is done, this is my world now. So raise up, we going way up. Time to face up, show what you're made of. I stayed up, never gave up, till I came up. This is my world now. This is my world now. Tonight's the night, I bring the fight. I got the crown, we kings, call me your majesty. Can't pull me down, got wings defying gravity. They try to dissect the strategy. They found winning's part of my anatomy. Hard fighter, survivor, parts of a titan. Eyes of an eagle, heart of a lion. No sense of trying to convince me. Let me see, how can I put this simply? If you ain't with me, you against me. I can see it now, bright as the sun. I am the one, I just begun. Can't stop my run, till kingdom come. What's done is done, this is my world now. So raise up, we going way up. Time to face up, show what you're made of. I stayed up, never gave up, till I came up. This is my world now. Yeah, this is my world now. I stayed up, never gave up. I changed the game up. This is my world now. This is my world. Tonight's the night. I bring the fight. This is my world. This is my world now. Welcome to my world. This is my world. You in or you out. The future is now. Let's see who's down. Yeah. If you ain't with me, you against me. I can see it now, bright as the sun. I am the one, I just begun. Can't stop my run, till kingdom come. What's done is done, this is my world now. So raise up, we going way up. Time to face up, show what you're made of. I stayed up, never gave up, till I came up. This is my world now. I can see it now. This is my world now. This is my world now. So raise up, we going way up. This is my world now. I stayed up, never gave up, till I came up.
promise nothing can ever break us. The future is now, I don't believe in later. I keep it pushing till I meet my maker. Real legends never die, they become greater. I put in work, look where I wound up. Found up at the top, built from the ground up. It's time to shine when we walking out. The world is mine, I'm the one they gon' be talking about. I can see it now. Hello, mic check. I am the one, I just begun. Can't stop my run, till kingdom come. What's done is done, this is my world now. So raise up, we going way up. Time to face up, show what you're made of. I stayed up. देवियों और सज्जनों, ये हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि आज के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस भव्य प्रांगण में हमारे बीच पधार रहे हैं। अब हमारे बीच माननीय गृह मंत्री महोदय कुछ ही पल में पधारने वाले हैं। आप सबसे आग्रह है कि मान्यवर के आगमन पर तालियों के जोरदार गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक श्री M.A. गणपति IPS की ओर से समारोह में आए हुए बजरंग पुनिया जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, टाटा मोटर्स लिमिटेड, गणमान्य व्यक्तियों एवं मीडिया कर्मियों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं।
माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का जन्म 1964 में मुंबई के एक संपन्न गुजराती परिवार में हुआ। बालपन में वह सदैव महान राष्ट्रभक्तों की जीवनियों से प्रेरित हुआ करते थे। इसी प्रेरणा के फलस्वरूप उन्होंने भी मातृभूमि की सेवा करने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का स्वप्न देखा। जमीनी स्तर के मुद्दों पर ध्यान देने और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अस्थायी संपर्क की योग्यताओं के बल पर उन्होंने अपनी संगठनात्मक क्षमताओं को प्रखर किया। देश के गृह मंत्री के रूप में आपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करते हुए देश की एकता व अखंडता के एकीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण, कड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए, जिनसे आपकी निर्णय क्षमता और दूरदर्शिता का पता चलता है। ऐसे प्रखर व कर्मठ व्यक्तित्व को आज अपने बीच पाकर हम अत्यंत गौरवान्वित व अभिभूत हैं। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एवं केंद्रीय सशस्त्र बलों के महानिदेशकों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि माननीय गृह मंत्री महोदय का स्वागत करें। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक श्री एम.ए. गणपति आईपीएस से इस सभा को संबोधित करने का आग्रह करता हूं। माननीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार, सभी गृह राज्य मंत्री महोदयगण, केंद्रीय गृह सचिव महोदय, केंद्रीय पुलिस बलों के महानिर्देशक गण, सीपी दिल्ली, डायरेक्टर सीबीआई, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, ओलंपिक पदक विजेता श्री बजरंग पूनिया जी, सुदर्शन भारत परिक्रमा कार रैली के प्रतिभागीगण, साइकिल रैली के सहभागी केंद्रीय पुलिस बलों के बहादुर जवान, मीडिया के मित्रों, यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आजादी के अमृत महोत्सव के विभिन्न आयोजनों की इस कड़ी में आज के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय गृह मंत्री महोदय की उपस्थिति ने हम सभी को गौरवान्वित और अभिभूत किया है। महोदय, हमारे बीच अपना बहुमूल्य समय साझा करने के लिए आपके प्रति हमारी कृतज्ञता व हार्दिक आभार। मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का भी अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर हमारा मनोबल बढ़ाया है। महोदय, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा आज आपकी ऋणी है। पृथ्वी का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की वादियों में आज शांति व अमन लौट चुका है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आपकी सक्रिय भूमिका को जितना सराहना किया जाए कम है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों का सक्रिय ऑपरेशन के साथ साथ पिछड़े इलाकों में समग्र विकास की प्रभावी नीति से नक्सल हिंसा में भी भारी कमी आई है। महोदय, आपके दिशा निर्देश में गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय पुलिस बल के कर्मियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। सभी बल सदस्यों की अनेक मूलभूत समस्याओं का आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप और चिंतनपूर्ण मूल्यांकन से निराकरण हुआ है। आवास, स्वास्थ्य जैसे कल्याणमूलक योजनाओं के लाने के साथ ही ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के क्षेत्र में भी आपके नेतृत्व में केंद्रीय पुलिस बल सशक्त हुए हैं। महोदय, देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव विभिन्न आयोजनों के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा देश के
75 स्थानों से 75 साइकिल रैलियां शुरू की गई है। आज गांधी जी की 152 जयंती पर देश के विभिन्न स्थानों से चलकर ये रैलियां सत्य, अहिंसा, शांति और एकता का संदेश फैलाते हुए देश की एकता के ताने बाने में दिल्ली पहुंच गई है। आज यहां कार्यक्रम केंद्रीय पुलिस बल का सदस्यों द्वारा देश के कोने कोने से शुरू हुई साइकिल रैलियों का स्वागत और समापन का है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ब्लैक कैट कमांडोज की सहभागिता पर आधारित सुदर्शन भारत परिक्रमा कार रैली का फ्लैग ऑफ भी किया जाना है। महोदय, आप जानते ही कि हमारे एनएसजी कमांडोज ने कई सफल ऑपरेशन किए हैं और उनमें अपना अदम्य साहस और प्रतिबद्धता दिखाई है। वो किसी भी कठिन परिस्थिति में अपनी जान की परवाह किए बिना वीरता से आगे बढ़े हैं। हम न केवल सबसे कठिन परिस्थितियों के लिए खुद को प्रशिक्षित करते हैं, बल्कि दूसरी राज्यों को सुरक्षा बलों को भी प्रशिक्षण देते हैं। एनएसजी द्वारा आयोजित सुदर्शन भारत परिक्रमा रैली को आज माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा फ्लैग दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह रैली देश भर के आजादी से जुड़े 18 शहरों से होकर गुजरेगी और लगभग 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वहां पर देश के उन स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी जिन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इस रैली में शामिल हमारे कमांडोज जनता के बीच आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का महत्व, शांति, परस्पर सौहार्द, देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाएंगे। आज इस सुअवसर पर हमारे बीच ओलंपिक पदक विजेता श्री बजरंग पूनिया जी भी उपस्थित हैं। आपने न केवल ओलंपिक में पदक जीतकर राष्ट्र का मान बढ़ाया है, बल्कि हमारे देश के युवाओं के लिए एक आदर्श भी स्थापित किया है। हमारी युवा पीढ़ी निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा लेती रहेगी। महोदय, बीपीआरएनडी के स्थापना दिवस के अवसर पर आपने एक सीख दी थी कि प्रत्येक संस्था को समय के साथ समायोजन करते हुए अपनी प्रासंगिकता बनाए रहने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आज इस अवसर पर सभी केंद्रीय पुलिस बलों की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारा प्रत्येक बल सदस्य आपके इस दूरगामी सुझाव को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस कार रैली में योगदान के लिए मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स का भी आभार सहित धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं माननीय गृह मंत्री महोदय सहित यहाँ उपस्थित अतिथियों, मीडिया कर्मियों और सभी देवियों और सज्जनों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। गृह मंत्रालय ने इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की योजना बनाई है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स द्वारा कुल 75 साइकिल रैलियों का आयोजन भी शामिल है। ये रैलियां देश के विभिन्न हिस्सों से शुरू होकर आज 2 अक्टूबर 2021 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती पर समापन होगी। इन रैलियों ने अपने सफर में देश के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के साथ साथ प्रगति और विकास के कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई है। साइकिल रैलियों ने अपने इस ऐतिहासिक सफर में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का भी भ्रमण किया। आजादी का अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसरण में एनएसजी ने सुदर्शन भारत परिक्रमा ब्लैक कैट रैली का आयोजन किया है। इस रैली में कुल 12 अधिकारी और 35 कमांडोज होंगे, जो 15 वाहनों में सवार होंगे। यह रैली 1 महीने की अवधि में देश भर के 18 शहरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज पर
500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह रैली आज दिल्ली के लाल किले से रवाना होकर लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता होते हुए भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई से अहमदाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इस रैली के दौरान हम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों जैसे काकोरी स्मारक लखनऊ, भारत माता मंदिर वाराणसी, शहीद मंगल पांडे स्मारक बैरकपुर, नेताजी भवन कोलकाता, स्वराज आश्रम कटक, गांधी हिल विजयवाड़ा, तिलक घाट चेन्नई, अगस्त क्रांति मैदान मुंबई एवं साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमें अवसर मिलेगा देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का जिन्होंने स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अन्य केंद्रीय बलों द्वारा इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महोदय की अनुमति से मैं संक्षेप में उनका परिचय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। असम राइफल्स ने इस अवसर पर वृक्षारोपण, बैंड डिस्प्ले और साइकिल रैली का आयोजन किया है। असम राइफल की ओर से 5 सितंबर 2021 को गुवाहाटी से दिल्ली तक साइकिल रैली आयोजित की गई, जिसमें कुल 50 प्रतिभागियों ने 3100 किलोमीटर का रास्ता तय किया। सीमा सुरक्षा बल विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल ने देश के विभिन्न सीमांत स्थानों से 15 साइकिल रैलियां आयोजित की, जिनमें कुल 225 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुर जवानों ने 4 मार्गों में विभाजित जम्मू दिल्ली, असम दिल्ली, तमिलनाडु दिल्ली और राजस्थान दिल्ली मार्ग पर कुल 7237 किलोमीटर की दूरी की, जिसमें कुल 200 प्रतिभागी शामिल थे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रतिभागियों ने लद्दाख के गोगरा से राजघाट, पूर्वोत्तर के ईटानगर से राजघाट, तेजपुर एवं गुवाहाटी से राजघाट सहित 8 साइकिल रैलियां आयोजित की। सशस्त्र सीमा बल ने पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न भागों से प्रारंभ कर 10 साइकिल रैलियां आयोजित की, जिसमें कुल 174 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कुल 10 रैलियां आयोजित की, जिसमें कुल 1703 किलोमीटर की दूरी तय की। अब मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि साइकिल रैली का फ्लैग इन करने की कृपा करें। मान्यवर। देश के विभिन्न प्रांतों से गुजरते हुए इन साइकिल रैलियों ने आम जनों, विशेषतः युवाओं के योगदान में राष्ट्र के प्रति एक नए जागृति का संचार किया है, जो आने वाले नए भारत के सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देगा। रैली के दौरान संपूर्ण भारत में इन जवानों का जिस जोश से स्वागत किया गया, वह हमारे अखंड भारत की एकता को दर्शाता है। नई पीढ़ी को हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यों, शिक्षाओं, संघर्ष एवं बलिदान की कहानी को एक नए नजरिए से इस रैली के द्वारा प्रचारित किया गया, जो राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय गृह मंत्री महोदय का, जिनके नेतृत्व में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, आपसे आग्रह है कि तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। देवी और सज्जनों, तालियों की गूंज और गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए।
इस रैली ने हमारी नई पीढ़ी को महान स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यों, शिक्षाओं, संघर्ष एवं बलिदान की कहानी को एक नए पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है। इस रैली के द्वारा प्रचारित किया गया राष्ट्र प्रेम आने वाले राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं माननीय गृह मंत्री महोदय का, जिनके नेतृत्व में इस रैली का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न भागों से गुजरते हुए जिस जोश एवं खरोश से इस रैली का स्वागत किया गया, वह हमारे अखंड भारत की एकता को दर्शाता है। धन्यवाद श्रीमान। वर्ष 2021 भारत के खेल इतिहास का सबसे गौरवशाली वर्ष रहा। हमारे खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत एवं 4 कांस्य पदक हासिल किए। आज हमारे लिए अत्यंत गौरव एवं सम्मान की बात है कि हमारे बीच टोक्यो ओलंपिक्स के कांस्य पदक विजेता उपस्थित हैं। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि श्री बजरंग पुनिया जी को स्मृति चिन्ह प्रस्तुत कर उन्हें सम्मानित करें। मान्यवर बजरंग पुनिया जी ने टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलो वर्ग कुश्ती स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और एक नया इतिहास रच इस देश को एक मेडल दिलाया। देवी और सज्जनों, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से श्री बजरंग पुनिया जी का सम्मान करें। धन्यवाद श्रीमान। जो सुन नहीं सकते बाहर का शोर, रूह का संगीत खींचता होगा अंदर की ओर। जिनको दिखती नहीं बाहर की चकाचौंध, भीतर की रोशनी देती होगी जीवन का बोध। जो बोल नहीं सकते अपनी मन की बात, मन के भाव से करते होंगे अपनों से बात। जो लगा नहीं सकते ऊंची छलांग, उनके सपने जरूर होते होंगे बेलगाम। ये सारी विलक्षण प्रतिभाएं हो जाएंगी दीपमान, जैसे ही आप और मैं मान लेंगे इन सब को दिव्यांग। देवी और सज्जनों, उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय की तरफ से आमद परफॉर्मिंग ग्रुप के दिव्यांग आर्टिस्ट आज आपके समक्ष देशभक्ति एवं सराबोर से परिपूर्ण एक नृत्य पेश करेंगे। आमद ग्रुप श्री रानी खनम के नेतृत्व में हमारे देश की पहली ऐसी संस्था है जो दिव्यांग कलाकारों को देश के प्रमुख कलाकारों के साथ सम्मिलित करके उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है। देवी और सज्जनों, तालियों की गूंज से स्वागत करें इन उभरते कलाकारों का। तेरे जैसा कोई नहीं है, नहीं सौ दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम।
देवी और सज्जनों, आप सबसे आग्रह है कि एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से इन कलाकारों की हौसला अफजाई करें। मैं उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा प्रस्तुत किए गए इस अद्भुत एवं भाव विभोर कर देने वाले कार्यक्रम के लिए उनके समस्त कलाकारों को नमन करता हूं एवं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब मैं माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम को संबोधित कर हम सबका मनोबल बढ़ाएं। माननीय आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मंत्री परिषद में मेरे साथी श्रीमान नित्यानंद राय जी, श्री अजय कुमार मिश्रा जी, श्री निशित प्रामाणिक जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय भल्ला जी, आज सूचना ब्यूरो के डायरेक्टर श्री अरविंद कुमार जी, सीपी दिल्ली श्री राकेश अस्थाना जी, सीबीआई के डायरेक्टर श्री सुबोध जायसवाल जी, डीजी एनएस जी, गणपति जी, एसएसबी के डीजी राजेश कुमार चंद्रा जी, डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह जी, डीजी आईटीबीपी श्री संजय अरोड़ा जी, डीजी बीएसएफ श्री पंकज कुमार सिंह जी, हम सब के बीच में बैठे हुए श्री बजरंग पुनिया जी, और आज एक साइकिल रैली अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची है और दूसरी सुदर्शन रैली अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर रही है। दोनों को लेकर निकले हुए एनएसजी और अलग अलग सीएपीएफ के सभी जवानों, अधिकारियों और प्यारे भाइयों और बहनों, आज पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और शुभ दिन है। आज हमारे देश के दो महापुरुषों का जयंती दिन है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत के इतिहास को, 1900 के बाद के इतिहास को अगर ध्यान से देखें तो दोनों महापुरुषों ने अपनी अमिट छाप भारत के इतिहास में छोड़ी है। महात्मा गांधी ने बैरिस्टर होने के बाद अफ्रीका में अपना कामकाज शुरू किया और वहां पर जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजी शासन के अंदर अफ्रीका में जो भारतीय थे और अन्य लोग थे उनको दोयम दर्जे का स्थान प्राप्त था, उसके खिलाफ उन्होंने वहां एक जंग शुरू की। सत्याग्रह नाम के शस्त्र का पूरी दुनिया को उन्होंने वहीं पर भेंट दिया। और जब भारत आए, भारत के अंदर उनको जो दृष्टि अफ्रीका के संघर्ष से प्राप्त हुई, उसी नजर से जब हिंदुस्तान को देखा, भारत को देखा, तो दारुण गरीबी, अकल्पनीय शोषण और गुलामी के अत्याचार देखकर उन्होंने पूरा जीवन अपने मृत्यु तक का भारत माता की सेवा में समर्पित किया और देश को आजादी दिलाने के लिए वो लग गए। दुनिया भर में उसके पहले
कई शासनों से कई देश आजाद हुए होंगे, मगर अपने आप में एक अनूठी आजादी का संग्राम महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें ना कोई शस्त्र उठाता था, ना कहीं हिंसा होती थी, ना रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती थी। और देखते 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 ये फकीर जैसे आदमी के पीछे 30 करोड़ की आबादी लग गई और अंततोगत्वा 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। वो आजादी के अमृत महोत्सव के साल में आज हम अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। पूरा देश गांधी जी के बताए हुए नए नए रास्ते और आजादी देने में उनके योगदान को आज भी याद करता है। उसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी ने न केवल देश की सुरक्षा के सभी आयामों को बदला, 65 की लड़ाई में एक मजबूत जवाब और विजयी युद्ध हमारी सेनाएं शास्त्री जी के नेतृत्व में लड़ी। बहुत छोटे से कालखंड में निर्लेप भाव से लोकतंत्र के अंदर लोगों की सेवा कैसे हो सकती है, इसका एक उत्कृष्ट और सुंदर उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों के सामने रखा। और इन्होंने जो सूत्र दिया, उन्होंने जो नारा दिया, जय जवान जय किसान, वो इतने सालों के बाद आज में ही इतना प्रासंगिक है जितना उस वक्त प्रासंगिक था। शास्त्री जी ने आजाद भारत के इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति ने किस प्रकार से जीना चाहिए, निर्लेप भाव से किस प्रकार से जीना चाहिए, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के सामने लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया है। आज हम सब उनको आदरांजलि भी देते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए अपने आप को पुनः समर्पित भी करते हैं। और इसी दिन पर आज यहां पर 2 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। एक देश भर के परिक्रमा समाप्त कर हमारे सीएपीएफ के लगभग 1000 जवान पूरे देश की हजारों शहीद स्थलों का ऊपर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर आज यहां पर पहुंचे हैं, दिल्ली में पहुंचे हैं, राजघाट पर जाकर आए हैं। और दूसरा, आज एनएसजी के बहादुर ब्लैक कैट कमांडोज द्वारा सुदर्शन भारत परिक्रमा की शुरुआत हो रही। मित्रों, ये जो कार्यक्रम हो रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी ने दांडी मार्च के दिन आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। कोरोना के कठिन काल के कारण शुरू में आजादी का अमृत महोत्सव मंथर गति से चलता हुआ दिखता था, मगर अब धीरे 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 प्रजा के अंदर एक नई चेतना की जागृति करता हुआ अमृत महोत्सव दिखता है। आजादी का अमृत महोत्सव किस लिए है? आजादी का अमृत महोत्सव, उसका उद्देश्य क्या है? मैं आप लोगों के सामने बड़ी सरल भाषा में इसमें रखना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। जब से देश ऊपर विदेशी आक्रमण हुए, तब से लेकर सन 57 तक, 1857 की क्रांति तक और 1857 से लेकर 1947 तक, आजादी मिलने के ये 100 साल तक, 90 साल तक कई गुमनाम शहीदों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जो शायद काल के कपाल में ग्रसित हो गई, कोई इसको जानता भी नहीं। कई ऐसे गुमनाम शहीद होंगे
जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, मगर आज उनका नाम शहीदों की सूची में भी नहीं होगा। और कई ऐसे शहीद भी थे जो लड़ते लड़ते इतनी बहादुरी से लड़े, जिन्होंने युगों तक देशभक्ति के संस्कार जागृत हो इस प्रकार के इतिहास का सर्जन किया। ये सारे शहीदों को, गुमनाम शहीदों को आजादी के आंदोलन के लिए अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव कस्बों में जो घटनाएं हुई उसको संजोकर एक आजादी के आंदोलन की अमर गाथा को फिर से जीवित करने का एक प्रयास है। और आजादी के आंदोलन की अमर गाथा को जीवित कर कर जो नई पीढ़ी है उसमें फिर से एक बार देशभक्ति के जज्बे को जगाना और देशभक्ति के जज्बे को जगाकर इसको देश के विकास के साथ जोड़ना। कई ऐसे लोगों ने पीढ़ियों तक बलिदान दिए, तब जाकर हमें आजादी प्राप्त हुई। कई लोगों ने अपने पूरे का पूरा जीवन दे दिया, तब जाकर हमें आजादी मिली है। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर की कुर्की अंग्रेजों ने एक एक बार नहीं 11-11 बार करी, फिर भी वो लड़ना नहीं छोड़े और मजबूती के साथ जब तक अंग्रेज यहां से नहीं गए वो लड़ते रहे, तब जाकर ये देश हमारा आजाद हुआ है। ये देशभक्ति के जज्बे को फिर से एक बार देश के हर युवा के मन में, एक बच्चे के मन में जागरूक करना और उसको देश के विकास के लिए, देश के आने वाले दिनों के लिए, देश के विकास में जोड़ने के लिए प्रेरणा देना। मैं आज इस मकाम से, इस मंच से देश के सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि हम सब का जन्म तो आजादी मिलने के बाद हुआ। हो सकता है शायद देश के लिए मरने का सौभाग्य हम किसी के भाग्य में न हो, मगर देश के लिए जीना ये हमारे हाथ में है। जिन्होंने देश के लिए मरकर देश को आजादी दी, देश को यहां तक पहुंचाया, सम्मान के साथ पूरी दुनिया के सामने हमारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों में लहरा रहा है, ऐसी स्थिति का निर्माण किया, वो उन्होंने अपने समय में जो जरूरी था किया। मगर क्या हम हमारा पूरा जीवन देश के लिए जी सकते हैं? क्या कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है। देश के विकास में अपनी सहभागिता निश्चित करें। मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास का जो पथ निर्मित हुआ है, जो रास्ता तय हुआ है, वो रास्ते पे अपने आप को डाल दे और रास्ते पे चलना शुरू करें। कई सारे ऐसे लक्ष्य मोदी जी ने देश के सामने रखे हैं। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है। ये देश दुनिया के सामने आत्मनिर्भर बनकर गौरव के साथ सीना चौड़ा कर कर, सर ऊंचा कर कर क्यों नहीं जी सकता? अगर देश के युवा लग जाए, हमारे वैज्ञानिक लग जाए, हमारे टेक्नोक्रेट्स लग जाए, तो सारी चीजें संभव है। जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है वो भारत में हो सकता है। ऐसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की हमने शुरुआत की। उन्होंने इसके साथ आत्मनिर्भर के नारे को चरितार्थ करने के साथ मेक इन इंडिया का नारा दिया है। पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब हमारा भारत क्यों न बने? दुनिया भर का उत्पाद भारत में उत्पादित होकर मेड इन इंडिया के थप्पे के साथ दुनिया में जाए, इस लक्ष्य के साथ अपने आप को, युवाओं को जोड़ना चाहिए। मित्रों, ये जो लक्ष्य रखे हैं वो सारे लक्ष्य देशभक्ति का ही जरिया है। हमने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हेल्थ मिशन जो शुरू हुआ है, हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए डॉक्टर अपने आप को खपा दे, लगा दे। ये मौका स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़े हुए सारे लोगों के पास आज उपलब्ध है। मेक इन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए हर इंजीनियर, हर किसान अपने आप को इसके साथ जोड़ दे और जो योजना बनी है वो योजना के तहत जाए, तो ये भी हमारे लिए मौका उपलब्ध। कई ऐसे संकल्प और प्रकल्प प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखे हैं
जो आत्मनिर्भर भारत का भी निर्माण कर सकते हैं और अपने आप को देश की सेवा करने का मौका भी देते हैं। मित्रों, ये वर्ष जो है आजादी का अमृत महोत्सव, ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, विश्व में भारत के उन्नत स्थान के लिए अपने मन में आशा जगाने का है, अपने मन में संकल्प लेने का है और अपने कर्तृत्व से जागी हुई आशाओं को संकल्प पूरा करने की दिशा में कर्तृत्व को रास्ते पर डालने का ये वर्ष है। हम 130 करोड़ की आबादी जिसकी है ऐसा देश है। अगर हम 130 करोड़ भारतीय आजादी के एक एक वर्ष, आजादी के अमृत महोत्सव में एक एक संकल्प लेते हैं, छोटा सा संकल्प हो, मगर जो देश के अंदर व्यवस्था निर्मित करने के लिए कारणभूत हो, तो कितनी बड़ी शक्ति खड़ी हो सकती। 130 करोड़ लोग एक दिशा में एक एक कदम चलते हैं तो हम एक साथ 130 करोड़ कदम आगे जाते हैं। इसका हमें बोध होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति, अगर एक बच्चा, अगर एक नागरिक पूरे जीवन के लिए एक शुभ संकल्प लेता है तो 130 करोड़ शुभ संकल्पों का संपुट हमारी भारत माता को विश्व में उन्नत स्थान पर पहुंचा सकता है। अगर एक बच्चा तय कर ले कि मैं मेरे जीवन में कभी ट्रैफिक के नियमों का तोड़ने का काम नहीं करूंगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी डिसिप्लिन इस देश में आती है। एक युवा तय कर ले कि मेरे बाकी के जीवन में मैं मेरी भोजन की थाली में एक दाना भी अन्न झूठा नहीं छोड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितना अनाज बच सकता है। अगर एक व्यापारी तय कर ले कि सरकार ने नियत किए हुए सारे टैक्सों को मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ सरकार को भारत के विकास के लिए दूंगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा काम हो सकता है। ये आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है 130 करोड़ लोगों को शुभ संकल्प लेने का और अपने पूरे जीवन को तक उसको निभाने का। 130 करोड़ शुभ संकल्प का योग ही भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है और पूरे विश्व के अंदर भारत को उन्नत स्थान पर पहुंचा सकता है। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि आजादी के अमृत महोत्सव को कार्यक्रमों से निकालकर, ये कार्यक्रम तो माध्यम है, जरिया है, कार्यक्रमों से निकालकर आजादी के अमृत महोत्सव को एक प्रेरणा का स्रोत बनाने का, आजादी के अमृत महोत्सव को चेतना जागृति का माध्यम बनाने का, आजादी के अमृत महोत्सव को भारत के विकास का एक राजमार्ग बनाना, इस दिशा में हम सब ने काम करना चाहिए। ये संकल्प लेने का समय है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का समय है। और अगर 75वें वर्ष में हम सब इस संकल्पों को लेते हैं और अपने आप को अपने कर्तृत्व से फिर से एक बार भारत माता को पुनः समर्पित करते हैं, तो जब आजादी की शताब्दी होगी तब निश्चित रूप से हम में से कई लोग नहीं होंगे, युवा होंगे वो होंगे, कई लोग नहीं होंगे, मगर मुझे पूरा विश्वास है उस वक्त विश्व में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर हमारा भारत उभरा होगा और ये जो कल्पना है वो कल्पना को साकार करेंगे। और इसीलिए ये आजादी के अमृत महोत्सव की कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करी है। ये जो छोटे छोटे हजारों लाखों कार्यक्रम हो गए, इसके माध्यम से चेतना की जागृति करनी, जागृत हुई चेतना को कर्तृत्व में बदलना है और सभी कर्तृत्व से जागृत हुए नागरिक को एक ही पथ पर रखकर एक प्रचंड ताकत की निर्मित करनी है। यही है आजादी का अमृत महोत्सव के पीछे मूल संकल्पना। आज यहाँ पर देश भर के अनेक स्थानों से, थोड़ा लेट ही हो गया, मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, परंतु लगभग केंद्रीय पुलिस बलों की 45 विभिन्न रैलियां एक माह की अवधि में 41,000 किलोमीटर, इस बात पर आप जरूर तालियां बजाएंगे, 41,000 किलोमीटर का साइकिल पर भ्रमण करके जहां पर भी आजादी की लड़ाई का
या ये आजादी के लिए शहीद हुए हुए गुमनाम नामी अनामी शहीदों का स्मारक है, उस सबको छूते छूते आज वो यहाँ पर आए हैं। राष्ट्रपिता की समाधि पर उन्होंने आज इसका समापन किया है। 41,000 किलोमीटर की यात्रा, कई छोटी छोटी सभाएं, कई छोटी छोटी मीटिंगें, कई छोटे छोटे कार्यक्रम, वहां पर ये चेतना जागृति का काम करते 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 आई है। कई सारी रूट बने हैं, उनके रूटों के अंदर मैंने बहुत ध्यान से देखा है, ढेर सारी स्मृतियां जहां हमारे आजादी के सेनानियों की है, जहां शहीदों की है, उसको जागरूक करते हुए ये यहाँ पर आए हैं। और आज एक सुदर्शन रैली एनएसजी के कमांडोज की कार रैली है, यहाँ से शुरू होने जा रही है। वो भी कार रैली बहुत बड़ी यात्रा कर कर अपना गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। मेरा जो यात्रा कर कर आ रहे हैं और जो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, दोनों जवानों और अधिकारियों को मेरा अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने जो निष्ठा से 41,000 किलोमीटर का भ्रमण किया है और सुदर्शन रैली जो कार रैली के रूप में निकलेगी, उन्होंने निश्चित रूप से इस देश में एक नई चेतना की जागृति के लिए एक निष्ठावान प्रयास किया है और वो आजादी के अमृत महोत्सव के लक्ष्यों की पूर्ति की ओर हमें ले जाएगा। मित्रों, आज देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में हमारे सभी सशस्त्र बलों के जवान -43 डिग्री से लेकर 43 डिग्री तक की गर्मी में अपने युवानी का महत्वपूर्ण काल जंगलों के अंदर, रण में, पहाड़ों पर, बर्फीले पहाड़ों पर बिताते हैं। उनके बलिदान के कारण ही आज देश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हम सुरक्षित, हमारा सार्वभौमत्व और स्वतंत्रता दोनों को अक्षुण्ण रखने के लिए 35,000 से ज्यादा पुलिस जवानों ने आज तक अपना बलिदान दिया है। 35,000 से ज्यादा पुलिस के और केंद्रीय बलों के जवानों। मैं मानता हूं आज वो भी दिन है कि हम सबके बलिदानों को याद करें और संकल्प लें कि 35,000 जवानों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया है, वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण जरूर करेंगे, गौरवशाली भारत का निर्माण जरूर करेंगे। और मोदी जी का जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, उसको भी हम जल्दी ही पूरा कर कर ही दम लेंगे। मित्रों, आज थोड़ा लेट होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान उपलब्ध हैं, परिवारजन उपलब्ध हैं और आए हुए लोग उपलब्ध हैं। मैं सभी को फिर से एक बार मोदी जी का जो संकल्प है आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से जन चेतना जागरूक करने का, देशभक्ति जागरूक करने का और जागी हुई जन चेतना और देशभक्ति को संचित कर कर भारत के विकास पर अग्रसर करने का, इसके लिए हम सब एक साल पूरा लग जाए, यही विनंती कर कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद श्रीमान। मान्यवर, आपके आशीष वचनों से मिले मार्गदर्शन के लिए मैं यहां उपस्थित सभी लोगों की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक से आग्रह करता हूं कि स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय गृह मंत्री महोदय को सम्मानित करें। मैं माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी से आग्रह करता हूं कि साइकिल रैली में भाग लेने वाले समस्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तरफ से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री को स्मृति चिन्ह पेश करें। धन्यवाद श्रीमान। देवियों और सज्जनों,
जैसा कि आप देख सकते हैं, एनएसजी के बहादुर ब्लैक कैट कमांडो सुदर्शन भारत परिक्रमा ब्लैक कैट रैली के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को फ्लैग ऑफ करने की कृपा करें। मान्यवर। देवियों और सज्जनों, रैली लीडर कर्नल ओएस राठौर सेना मेडल माननीय गृह मंत्री महोदय को सलूट कर ऐतिहासिक सुदर्शन भारत परिक्रमा ब्लैक कैट रैली को प्रारंभ कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि तालियों की गूंज से इन बहादुर कमांडोज की हौसला अफजाई करें। रैली के प्रतिभागी न केवल स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों, घटनाओं और उन आदर्शों से मिलने का मौका मिलेगा और कई भाषाओं, धर्मों और जीवन शैली को निकट से देखने का अवसर भी मिलेगा। उन्हें अवसर मिलेगा देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का जिन्होंने स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। देवी और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद श्रीमान। मैं एनएसजी के महानिदेशक श्री एम.ए. गणपति आईपीएस की ओर से समारोह में आए हुए माननीय गृह मंत्री महोदय श्री बजरंग पुनिया जी, श्री वरिष्ठ अधिकारीगण, टाटा मोटर्स लिमिटेड, गणमान्य व्यक्तियों एवं मीडिया कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अंततः मैं माननीय गृह मंत्री महोदय जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ बहुमूल्य समय निकालकर इस सभा को अनुग्रहित किया। धन्यवाद श्रीमान। जय हिंद, जय भारत।